Hello everyone, welcome back to the Bodhi Academy. This is the second class for the English section of competitive exams. Our topic today will be tenses. We will be continuing from the parts of speech that we did the last time. Now for tenses, what is the basic concepts that we need to learn for tenses? First thing and foremost, what defines the tenses is the most important factor. First importance being how good or what level is the tenses being sent in. Now for exams, your levels of exam will be based on what kind of questions of tenses can come. There can be basic direct questions for tenses like change one kind of tense, simple present tense into simple past tense. But there can also be indirect questions based on your spotting the error or any kind of exercises that is grammar based for your exam. So we will look into the basic structure of what tenses is all about. So tenses is first and foremost divided into three parts, which then again is divided into four subparts. So we are going to learn slowly and steadily which all parts we are talking about. So starting with the first three parts of tenses, which will be present tense, past tense and future tense. We know in detail that present tense will be what is happening right now, अभी क्या हो रहा है वो. Past tense will be जो हो चुका है वो, and future will be जो होने वाला है वो. So based on these three forms is what the tenses are made of. Now each tense is divided into four subcategories. ये subcategories तीनों में एक ही चीज़ होती है. The names will be the same, only the structure will change. Subcategories के जो भी structure है उसको एक एक सेक्शन का समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंट एंड पास्ट. छोटी छोटी सी हेल्पिंग वर्ब्स ही डिफाइन करते हैं कभी कभार कि वो प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन व्हाट काइंड ऑफ टेंस यू आर टॉकिंग अबाउट. यू हैव टू नो द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर इट. तो जब हम आज पढ़ेंगे, आई विल टेल यू व्हाट द सब कैटेगरी इज, आई डिस्क्राइब व्हाट इट डज एंड आई विल गिव यू अ स्ट्रक्चर फॉर द सेम. So you will get a better understanding as to what kind or what is the difference in each tense. Okay, so with starting, we will start with the present tense and we'll go from there. Present tense में first concept या फिर सब categories जो है उसको देखेंगे and then we will go. First category is simple form, that is simple present tense. Simple present, simple past, simple future. हम लोग एक सेक्शन को स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल गो फ्रॉम देयर टू द नेक्स्ट वन. ओके, सिंपल प्रेजेंट इज द टेंस इन विच ऑल द फैक्ट्स और व्हाट वी आर टॉकिंग इन रूटीन बेस इज बीइंग स्ट्रक्चर्ड. यानी कि जो चीज़ें हम रूटीन में बोलते हैं, जो रूटीन में करते हैं या जो फैक्ट्स बताते हैं लोगों को, that things come under simple present because they are something that happens on daily basis or something that is always present there. तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या स्पेसिफिक टेंस डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. तो द इंफॉर्मेशंस दैट यू गिव आउट, द फैक्ट्स दैट यू से एंड योर रूटीन फॉल्स अंडर द सिंपल प्रेजेंट टेंस. Facts, routines and informations are what are divided in simple present tense. अब इसमें स्ट्रक्चर कैसा आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही ईजी है. उसके स्ट्रक्चर्स, ऑब्जेक्ट दैट इज योर वर्ब वॉट एवर इट मे बी, प्लस वर्ब का बेस फॉर्म दैट इज इफ इट इज रन स्टेज रन, runs based on subject verb agreement, sing sings, the basic structure and rest of the sentence will go with it. So this is a basic structure of present tense, simple present tense. अब इस structure के आगे add किया जाएगा, divide किया जाएगा और change किया जाएगा verb form को in each tense. तो हम लोग एक डिटेल में इसका समझेंगे तो we will get a better idea as to how it goes. जैसे कि इसमें for example, she teaches. Simply put,
I, or for example, I brush my teeth every day. Here, the teaches and brush becomes your simple present tense form. ये define करता है कि आपका tense क्या है. Now, in not all the structures you have the same thing. Helping verbs भी आते हैं that gives you help on what kind of forms you are giving. तो वो भी detail में देखेंगे. So, I am taking off this example. We will go to the next form, which will be present continuous form. Now, as the word suggests, present continuous का मतलब है जो हो रहा है, that is going on right now. जो काम, जो क्रिया अभी भी चल रही है, that is the continuous form. So anything that is happening right now in the timeline that you're sitting, that is what is present continuous. Now present continuous are things that you're doing at that point in time, or that is happening as you speak with someone else, or something that is like an event that is going on and you are in between that event. तो ये चीज़ें actions that is happening right now is a simple continuous form, present continuous form. That is your present continuous form. अभी इसके structure क्या होते हैं? Again the same thing, object will not change. इसके साथ difference ये आता है, there will be a part called a helping verb. जो होगा अगर I है तो am, singular है तो is, and plural है तो are. ये आपका helping verb आएगा, उसके साथ V का baseline यानी कि verb के baseline के साथ ing जुड़ जाएगा and rest of the sentence. इन वर्ब के बेस फॉर्म में जब ing जुड़ जाता है तो उस वर्ब का रनिंग और कंटिन्यूस फॉर्म होता है, जैसे रनिंग, टीचिंग, स्पीकिंग. तो दैट इज व्हाट इज अ स्ट्रक्चर फॉर कंटिन्यूस फॉर्म. अभी कंटिन्यूस में एक एग्जाम्पल कैसे बोलेंगे? शी इज टीचिंग इंग्लिश. ये है आपका कंटिन्यूस फॉर्म जिसमें इस आ गया बिकॉज दिस इज ओनली सिंगुलर पर्सन एंड इज टीचिंग. टीच का ing फॉर्म. तो यही एग्जाम्पल हमने पहले भी दिया था जिसमें कि टीचर्स दिया है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म के लिए, एंड फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म इट इज टीचिंग. So this helps you in understanding how the form of the or the sentence changes based on the tenses. Okay, now going to the next form. Next subcategory for the tenses are perfect. Here for present it will be present perfect. Now what is a present perfect form? Present perfect काफ़ी confusion वाली concept है. काफ़ी लोगों को उसमें confusion आता है कि ये क्यों specify किया जाता है ये form. अभी ये ऐसा tense है जो आपको कुछ हो चुके चीज़ के बारे में बताते हैं. इट इज़ अ पास्ट एक्शन बट इट हैज़ अ रेलेवेंस इन द प्रेजेंट टाइमलाइन. कुछ ऐसा जो हो चुका है लेकिन उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसकी जो सब इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ सामने या फिर यहाँ पे आज के टाइम पे ज़रूरी है. दैट इज़ व्हाट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म. एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड बट स्टिल हैज़ अ रेलेवेंस इन दिस पर्टिकुलर टाइम, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में बोलते हैं. सो सिंपली पुट, एक्शन which even though finished still has relevance. That is your simple present perfect form. अभी प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल्सो लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल व्हाट यू कॉल
सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म से थोड़ा अलग है. एंड देर इज अ किक टू इट, देर इज अ पॉइंट टू इट. जैसे कि इस स्ट्रक्चर में थोड़े कन्फ्यूजन्स इसलिए भी आते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर टिपिकल प्रेजेंट में नहीं होता है. ऑब्जेक्ट जो चेंज नहीं होगा, आपका नाउन, आपका मेन सब्जेक्ट जो है वो वही रहेगा. उसके साथ इसकी जगह ऐड होता है हैज, जो डिफाइन करता है कि कुछ काम जो हो चुका है. ओके, एंड द नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हियर comes the V3 or the past participle form of a verb. V3 मतलब write, wrote, written. That is the third form or the past participle form of the texture called write. Write, wrote, written. Okay, so that is your past participle. Written हो जाता है past participle. So it's not the past tense form, it's a past participle form. So that is what we use here. It is not exactly past. Majority बहुत सारे words ऐसे हैं जिसके past form and past participle form एक ही है. ठीक है, there are lot who don't have the same पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. तो वैसे में जिसमें नहीं है सेम पास्ट पार्टिसिपल, इट इज एडिंग विथ TEN, रिटन, बिटन, दोस काइंड ऑफ थिंग्स. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ. शी हैज टॉट द क्लास फॉर 3 hours. She has taught the class for 3 hours. She has taught the class since 3 hours. All these things are relevant which shows that वो 3 घंटा शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है. It is not covered yet. तो वो actions हम present perfect में डालते हैं. So the action that has happened but has relevance even now is converted in present perfect form. अभी एक last form है जो सब form है हर एक टेंस का, उसको भी हम देखेंगे एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टेंस. नेक्स्ट और द लास्ट फॉर्म विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. Now, as the word suggests, present perfect continuous is a combination of perfect and continuous. यानी कि उसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जो एक्शन हो चुका है पर अभी भी चल रहा है. इट इज नॉट हैविंग रेलेवेंस, इट इज एक्चुअली हैपनिंग इवन नाउ. दैट इज व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तब आता है जब कुछ चीज़ कुछ टाइम से चल रही होती है और अभी भी उसके प्रोसेस जा रहे होते हैं. तो उसमें जैसे कि मैंने 10 मिनट पहले ये क्लास शुरू किया था लेकिन अब 1 घंटा और चलेगा. सो दैट प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑन इज द एग्जाम्पल फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अभी इसमें भी स्ट्रक्चरल डिफरेंस आते हैं. द ओनली डिफरेंस, द मेजर डिफरेंस इज पास्ट पार्टिसिपल यहाँ नहीं आएगा, लेकिन द स्ट्रक्चर हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. हर एक फॉर्म के अगर आप स्ट्रक्चर को देखो तो बहुत डिफरेंसेस होते हैं. सो प्लीज कीप इन माइंड कि द स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई विच टेंस यू आर टॉकिंग अबाउट. जब टेंस के क्वेश्चंस आते हैं तो पहले ही क्वेश्चन का टेंस जानना जरूरी है, तभी जाके आप आंसर के लिए टेंस फॉर्म बना पाओ. तो ऑलवेज रिमेंबर द स्ट्रक्चर हेल्प्स यू बेटर अंडरस्टैंड द टेंस फॉर्म. और वो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे हर एक चीज़ के सेंसेस लेने में ज़्यादा टाइम ना मिले. सी यू गेट लेस देन 30 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन. अगर आप वो 30 सेकेंड वो टेंस क्या है उसी को सोचने में लगा दोगे तो योर होल पेपर विल गो इन अ लैप्स. ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग. तो इसके लिए फिर से द एक्शन स्टार्टेड बिफोर but is still continuing.
दैट इज व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, अभी इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा? ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज, उसके साथ आएगा हैज या हैव जो परफेक्ट डिस्क्राइब करता है, उसके साथ बीन, उसके साथ बेसिक वर्ब फॉर्म V1 वर्ब फॉर्म का ing फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. दैट इज has or have based on singular or plural. Been is something that gives you a hinge on the action. Verb form का ing, base form का ing आएगा. यहाँ पे अगर मैंने यही sentence लिया है teaches, तो teaching ही आएगा वहाँ पे. जैसे कि अगर इसी को continue करें, she has been teaching for 1 hour, तो उसके बाद वो कंटिन्यूसली चल रहा है 1 और घंटा या वॉट एवर. सो दैट इज योर आंसर. शी हैज बीन टीचिंग फॉर 1 hour. दिस इज योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट टेंस फॉर्म. ये जो सब कैटेगरीज है, सिंपल फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सारे टेंसेस में आएंगे. सो द इम्पॉर्टेंस इज ये सब कैटेगरीज आपको डिफाइन करते हैं एक एक स्ट्रक्चर का डिफरेंट पॉजिटिविटी. तो द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर टू बी एबल टू better understand the whole format of the. तो like I said, next is the past form. अभी हमने देख लिया कि सब कैटेगरीज प्रेजेंट के कितने हैं. नेक्स्ट इज आवर पास्ट टेंस. पास्ट टेंस के भी सब कैटेगरीज सारे सेम हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वो जिस तरीके से बोला जाता है और क्यों यूज किया जाता है इसमें फर्क आएगा. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट विल बी simple past tense. That will be simple past tense. अभी simple past tense का क्या मतलब है? Simple form of addressing the past actions. जिसमें आप past action के बारे में बता रहे हैं किसी को, उसमें we use simple past tense. भी ज़रूरी नहीं है कि जो भी बताया जा रहा है या जो बोल रहे हैं उसमें सारे फॉर्म्स ही इकट्ठे हो. व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग और व्हेन यू आर जस्ट इन्फॉर्मिंग समवन अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट मोमेंट, उसको यूज करने के लिए वी कैन गिव सिंपल पास्ट फॉर्म. अभी सिंपल पास्ट फॉर्म इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट टेंस. कैसे? नाउ दिस इज इन्फॉर्मिंग और टेलिंग अबाउट something that happened in the past. Past action. Okay, that is what is simple past. Now अभी इसके स्ट्रक्चर में जाते हैं. इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज, और ऑब्जेक्ट के साथ पहले हमने लिखा था वर्ब का बेसिक फॉर्म. यहाँ पे हम लेंगे वर्ब का ईडी फॉर्म, यानी कि पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड. दैट इज व्हाट वी टेक फॉर द सिंपल पास्ट फॉर्म. सो सिंपली पुट, इफ आई हैव टू से he played yesterday. You simply telling someone, कोई पूछ रहा है कि उसने वो कब खेला, तो यू आर सेइंग ही प्लेड yesterday. तो सिंपल कॉन्सेप्ट में सिर्फ बता रहे हो एक इंफॉर्मेशन कि एक काम हो चुका है, वो खेल चुका है. दैट इज वेयर वी यूज सिंपल पास्ट टेंस. अभी नेक्स्ट व्हेन वी डू दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर. योर बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना. इट विल कम इन हैंडी व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेंसेस. भी दूसरा सेक्शन पास्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? सी,
when you are talking in past or future, the point or the main important topic or main factor is your timeline. तुम किस timeline में खड़े होके बात करते हो? What is the timeline for the particular action? अभी जब when you are talking in the past tense form in continuous, तुम उस timeline में खड़े हो. You are sitting or standing in that particular timeline before you are informing about that action. मतलब कल हुआ जो action उसके बारे में बात हो रही है, तो कल के उस टाइम में खड़े होकर आप बात करोगे, इस टाइम पे ये चल रहा था. तो you are talking from the present, but your timeline is in that particular moment, in that past or in that coming future. तब जाके continuous perfect वगैरह make sense करेंगे. तो timeline is very important, especially for continuous tense and perfect continuous tense. तो structure में कैसा आता है कि continuous form is something that will help you in the process. मतलब वो चलता जा रहा है, that is happening, going on happening, correct? तो यहाँ पे क्या होगा? an action that was happening at the set timeline. At the set timeline. That is what is your past continuous tense. अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हमने प्रेजेंट में क्या किया था? इस और आर. तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉस और वर प्लस वर्ब फॉर्म का past tense, that is ed form of the verb and rest of the sentence. This is your structure. तो इस आर की जगह was were आएगा एंड वर्ब फॉर्म के ing फॉर्म की जगह पास्ट फॉर्म के ing फॉर्म आएगा. आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक देयर. तो ये एग्जाम्पल क्या आएगा? ही प्लेड yesterday. ही was playing yesterday. यानी कि वो इस टाइम पे खेल रहा था, वो कल खेल रहा था. He was playing yesterday. You are showing that particular timeline structure. So it is playing. तो यहाँ पे क्या आएगा? was आएगा जो present में हमने इस लिखा था and playing will not change. तो कभी कभी स्पेशली continuous tense में आपके structure में सिर्फ helping verb change होता है. If you see here, instead of was यहाँ पे इस लिख दिया जाए तो ये पूरा structure present continuous हो जाता है. तो here it is not the verb that is describing the tense, it is the helping verb that is helping you to understand the tense. ये हमेशा याद रखिएगा कि helping verb is also a very important factor when it comes to tense identification. ये अब थर्ड क्या है? past perfect. प्रेजेंट परफेक्ट क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब था कि आप उस वक्त कुछ हुआ है, समथिंग दैट हैपेंड बिफोर हैज अ रेलेवेंस एट दैट टाइम टू द प्रेजेंट टू. पास्ट परफेक्ट का वही माजरा है बट ओनली इन द पास्ट, यानी कि हो चुका है वो एक्शन एंड द रेलेवेंस ऑफ दैट टाइम इज ऑल्सो पास्ट. मतलब हम जिस टाइमलाइन में खड़े हैं उसमें दैट रेलेवेंस वॉज देयर बट करेंटली इट इज नॉट. तो हम पास्ट परफेक्ट में जब बोल रहे हैं तो वी आर सिटिंग इन दैट रेलेवेंट टाइमलाइन बट द एक्शन हैज हैपेंड बिफोर दैट सेट टाइमलाइन. तो दैट इज हाउ वी यूज पास्ट परफेक्ट. एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर द इवेंट concluded. That is your past perfect tense. अभी past perfect tense, present perfect tense का construction कैसा था? Present perfect tense का construction था has plus past participle form. अभी यहाँ पे भी आपको verb tense में कोई difference नहीं आएगा. यहाँ पे object आएगा. The only difference will be here has changes into had.
Has will change into had, and then you will have the V3 form, that is past participle form of the verb, and rest of the sentence. यहाँ पे भी as here, the only difference will be here and here, और कहीं पे structurally changes नहीं आते हैं. जैसे कि if I have to turn this particular sentence into past perfect tense, he had played yesterday. He had played. अभी play का कोई past participle form में change नहीं होता. It is the same as played in the past and past participle. तो यहाँ पे he had played yesterday आफ्टरनून. यहाँ पे थोड़ा और डिटेल्स दे दिया जाता है, यानी कि कब हुआ वो पर्टिकुलर स्टैंड, वो इवेंट कब शुरू हुआ, कब किस टाइम पे उसका एंडिंग हुआ, क्योंकि दिस इज रेलेवेंट टू अ टाइमलाइन. मतलब वो लोग कल में बैठ के पूछ रहे हैं कि उसने कब खेला, तो वी आर टेलिंग वो कल ही खेला, लेकिन कल आफ्टरनून तक उसकी खेल खत्म हो चुकी थी. सो दैट इज वेयर वी डिस्क्राइब पास्ट परफेक्ट टेंस. यहाँ पे अगेन लाइक आई सेड, दिस इज द ओनली चेंज दैट विल हैपन. So always look at the helping verb with the verb whenever you're looking at tenses. Abhi last form, past perfect continuous. Past perfect continuous. Abhi present perfect continuous क्या था? An event that has started and it was still going on. वो था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. द सेम वे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, एक इवेंट हो चुका है और उसका रेलेवेंस आप जिस टाइमलाइन में खड़े उसमें भी हो रहा है. इट इज वाई इट इज अ कंटिन्यूअस फॉर्म. जैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस में था, एक्शन हो चुका है लेकिन उस टाइमलाइन में वो कंटिन्यू हो रहा था, इसलिए उसको कंटिन्यूअस बताया गया है. उसी तरह परफेक्ट में भी एक्शन स्टार्ट हो चुका है वे बिफोर द टाइमलाइन, but it is going on when the set timeline is for that past time. That is where we use something called past perfect continuous. Past perfect continuous का भी concept pretty simple है, उसमें भी structural difference सिर्फ और सिर्फ आपके helping verb में आता है. Now for past perfect continuous, action that started before but continued in the set timeline. यह है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. वी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कैसा आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ से ये आएगा. It was a repetition the same way in past present perfect also. We took has from here to the down part. Same way यहाँ पे भी had नीचे आएगा plus been plus verb का base form का ing plus rest of the sentence. Structure में सिर्फ had का फर्क है, जिससे it will become past continuous perfect continuous and present perfect continuous. अभी यही tense को अगर मुझे लेना है तो what will I say? He had been playing yesterday since morning, or he had been playing for the group since last year, or he had been playing for that team since 2 years. That is where we do it. मतलब उसका relevance है, वहीं पे हम लिखेंगे he had been playing for the team for 2 years. This is your basic structure for past. इसको समझना ज़रूरी है because past and present tense has a very small or thin line of difference between them, mainly because of their helping verbs. So always categorize the tenses accordingly. The next one will be the future tense. So future tense,
अगला है फ्यूचर टेंस. अनलाइक पास्ट एंड प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस इज नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर में एक सिमिलैरिटी हमेशा रहती है जिसका आइडेंटिफिकेशन आप जल्दी से कर पाते हो इन दिस टेंस. आई विल टेल यू वॉट इट इज, बट बेसिक आइडिया क्या है, जैसे हमने पास्ट में बोला था फ्यूचर टेंसेस में भी एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वन बाकी तीनों में देयर इज अ टाइम लाइन स्ट्रक्चर. मतलब आप उस टाइमलाइन में बैठ के बात करते हैं, उस टाइमलाइन में बैठ के सोचते हो, तब जाके यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू आर लुकिंग इनटू. ओके, तो अभी फ्यूचर का स्टार्ट करते हैं. फ्यूचर का पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है? सिंपली पुट, एनीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. जो आप फ्यूचर में करने का प्लान कर रहे हो, किसी को बता रहे हो कि हाँ मैं कल ये करने वाला हूँ या मैं ये करने वाली हूँ, दैट इज व्हाट इज योर सिंपल फ्यूचर टेंस. जो भी चीज़ आप सोच कर इन्फॉर्म करते हो किसी को, एनीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन योर फ्यूचर, you want to inform someone, that is what is used in simple future tense. दैट इज योर सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आता है दैट मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड. सिंपली पुट, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, बट ये जो हेल्पिंग वर्ब है इट इज ओनली एप्लीकेबल टू फ्यूचर एंड इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एल्स, सो इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड. विल और शैल, ये है आपके फ्यूचर के सबसे बड़े हेल्पिंग कॉन्सेप्ट, जो है विल और शैल. और बेसिक वर्ब फॉर्म वो चेंज नहीं होगा एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. यानी कि हर एक फ्यूचर टेंस में कोई भी फॉर्मेट हो, हर एक फ्यूचर टेंस में कहीं ना कहीं विल और शैल आना है, विल और शैल होगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये फ्यूचर का ही है. सो दैट इज द मेन स्ट्रक्चर. सबसे बड़ा हाईलाइट फॉर एनी थिंग दैट इज फ्यूचर टेंस इज विल और शैल. अभी इसमें एक सेंटेंस बताना हो तो क्या बोलेंगे? आई, चलो आई ही लिखते हैं. आई विल स्टडी टुमारो. बच्चों से पूछो कि भाई पढ़ाई कर लो, एग्जाम लिख लो, तो पहले बोलेंगे कल करते हैं. दैट इज अ बेसिक आइडिया. आई विल स्टडी टुमारो बहुत ही स्टैंडर्ड है, जो सब एटलीस्ट पेरेंट्स के लेवल में या सिबलिंग्स के लेवल में सुना ही होगा कभी ना कभी. दैट इज योर सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, सिंपली पुट. और सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन हर एक फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को है विल. नाउ नेक्स्ट वन, फ्यूचर कंटिन्यूअस. फ्यूचर में कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है? सिंपली पुट, लाइक आई सेड, टाइमलाइन. कभी भी किसी चीज़ को करने से पहले हम बोलते हैं कि मैं कल, या फिर इफ़ यू आर गोइंग फॉर ट्रैवल, लेट्स से, कभी कभी एक्साइटमेंट में बोलते हैं कल इस टाइम पे तो मैं ट्रेन में बैठा हूँगा या फ्लाइट में बैठा हूँगा. सो आइडेंटिफिकेशन या फिर द कॉन्सेप्ट इज वॉट, टू गिव अ टाइमलाइन जिसमें वो एक्शन हो रहा होगा इन द फ्यूचर. जस्ट लाइक पास्ट, फ्यूचर टेंस में भी ज़रूरी है ये समझना कि कौन सा एक्शन है जो हो रहा होगा इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड टाइमलाइन. अभी ये जो फ्यूचर टेंस है इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर एंड वेरी इजी टू ट्रांसलेट, लेकिन उसके स्ट्रक्चर्स में सारे स्ट्रक्चर्स, बेसिक स्ट्रक्चर जो वर्ब का होता है काफ़ी सिमिलर होता है. वर्ब का बेसिक फॉर्म, वर्ब का पास्ट फॉर्म, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिस स्ट्रक्चर में दिया जाता है उसके हिसाब से वो टेंस बनता है. टेंसेस हमेशा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपका हेल्पिंग वर्ब ही होता है.
तो इसलिए ये कभी मत समझिएगा कि अगर मैंने पास्ट का एक सेंटेंस ले लिया या फिर मेरा वर्ब पास्ट में है तो वो पास्ट टेंस है, बिल्कुल नहीं। मेरा पास्ट टेंस फॉर्म में मैं अपने वर्ब को फ्यूचर में भी रख सकती हूँ, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमको दिखाती है कि वो डिफरेंट है या नहीं है। सो हियर फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो एक्शन होने वाला है कंटिन्यूअसली इन दैट पर्टिकुलर टाइमलाइन, एक्शन दैट विल बी continuing in the particular timeline. Okay, this is your future continuous tense. अभी future continuous tense के स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आता है? एक स्टैंडर्ड बदलाव होगा कि ऑब्जेक्ट के बाद will और shall आएगा। इसके साथ साथ when it comes to future continuous एक और चीज आएगी which is called be. It is also a helping verb which helps in stressing on the fact that कर पाऊंगा मैं कल को, मैं कर सकता हूं कल, something in the future, like base form of verb उसका ing form and rest of the sentence. This is your basic structure for future continuous. अभी अगर मुझे यही चीज फ्यूचर कंटिन्यूअस में बोलना हो तो कैसे बोलूंगी? I will be studying tomorrow. I will be studying tomorrow morning. I will be writing the exam tomorrow at 9 AM. ये है आपका स्ट्रक्चर। तो इसके एग्जाम्पल में I will be studying on Friday. तो आपके यहाँ पे डेफिनेशन, ये आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस होने पर विल और बी और आईएनजी फॉर्म आता ही है। आईएनजी फॉर्म हर कंटिन्यूअस में आता है, पास्ट फॉर्म हो, प्रेजेंट फॉर्म हो या फ्यूचर फॉर्म हो, एंड ऑल्सो इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो इसलिए किसी भी टेंस को डिफाइन करने के लिए, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, डू नॉट only rely on the verb form. You have to look with the helping verbs as well. So this is your second subcategory for future. Third subcategory of future comes as future perfect tense. अब future perfect tense क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब हुआ कि आप एक टाइमलाइन में खड़े होकर बात कर रहे हो और वो एक्शन उस टाइमलाइन तक खत्म हो चुका होगा. इट वुड हैव गॉटन ओवर बाय दैट टाइम. दैट इज व्हाट इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बोला कि हम खड़े हैं, वो हो चुका है, लेकिन उसका रेलेवेंस अभी भी है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे होगा? उस एक्शन का होना खत्म हो चुका होगा, लेकिन वो जरूरी है उस पर्टिकुलर टाइमलाइन तक के लिए. दैट इज व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. So future perfect tense will be an action that will happen, will have happened, okay, but has relevance in the set timeline. ठीक है ना? दैट इज योर फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का दूसरे परफेक्ट टेंस से डिफरेंसेस स्ट्रक्चर में क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल. विल और शैल स्टैग्नेंट है हर एक में, प्लस यहां पे है डिफरेंस फॉर योर परफेक्ट. यहां पे आएगा हैव और V3, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, सो दिस इज योर बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें दिस इज द
person who defines the future perfect tense. अभी इसी को अगर मुझे future perfect tense में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? I will have studied by the exam time. I will have studied or finished studying at the exam time. More like I will have studied by the exam time. That is more an apt structure. I will have studied by the exam time on Monday, let's say. That is your structural difference और ये ऐसा ही आएगा. Okay, so the identification for perfect will be have for future. अभी future का एक last structure है जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. It is the last one for future, which is called future perfect continuous. This is the last structure for future, which is called future perfect continuous. Future perfect continuous क्या होता है? Same concept as other perfect continuouses in the future. यानी कि एक stand या एक event जिसमें the event's action has already started in that future timeline और चल रहा है क्योंकि वो event अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो होने वाला है. That is your timeline difference of future. मतलब वो फ्यूचर में ही कभी शुरू हुआ है लेकिन इस पर्टिकुलर टाइमलाइन से पहले शुरू हो चुका है एंड इट इज़ गोइंग ऑन क्योंकि वो जो इवेंट है वो ख़त्म होने में अभी कुछ और टाइम है. तो दैट इज़ वेयर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कम्स. सो व्हाट वी से ऑन दैट इज एन एक्शन that has started but is still continuing in the future timeline. That is your future perfect continuous. Future perfect continuous का भी structure is somewhat similar with others. It is lengthy a little more than the others is the difference. अभी structure कैसा आएगा इसका? Object plus will or shall और क्योंकि it is perfect has perfect in it तो सबसे बड़ा identification mark have भी यहाँ पे आएगा प्लस एक और वर्ड आएगा विच इज बीन. यहाँ पे बी था, यहाँ पे बीन हो गया एंड द वर्ब फॉर्म्स ing फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. दिस इज योर स्ट्रक्चर. यहाँ पे ये आएगा परफेक्ट से, ये आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस से और दिस इज कंटिन्यू. सो दिस इज योर होल स्ट्रक्चर. ऑब्जेक्ट या कि नाउन आएगा, विल और शैल आएगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, हैव आएगा प्लस बीन आएगा प्लस द वर्ब फॉर्म का ing. सो व्हेन यू आर writing or you are identifying a future perfect tense, it is very easy because it has too many helping verbs with it. तो अभी इसी सेंटेंस को मुझे अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस करना है तो I will have been studying by the time you come back from your vacation. I will have been studying आएगा और I will have been studying even after you come back from your vacation. This is your basic structure of the tenses. इसमें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि टेंसेस क्यों सीखना है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव.
अभी एक टेंस है दैट इज कॉल्ड स्पॉटिंग द एरर, जो आपके लिए सबसे कॉमन होता है. स्पॉटिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे बहुत ही कॉमन फॉर्म्स ऑफ टेस्ट है आपके ग्रामर में. अब अगर आपको स्पॉटिंग द एरर में एक स्ट्रक्चर दिया गया हो जिसमें, या फिर पैराजम्बल्स भी ले लीजिए, अगर आपको एक सेंटेंस दिया गया हो जिसका टेंस फॉर्म एक हो और दूसरे सेंटेंस में ही उसका टेंस फॉर्म चेंज हो रहा हो, तो क्या वो टेंस फॉर्म सही है? आर दे जेलिंग टुगेदर? आर दे मेकिंग सेंस? एक सिंपल विल की जगह वॉस डाल दिया तो वो टेंस ही चेंज हो गया. तो दीज काइंड ऑफ सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेंसेस अगर आप समझ पा रहे हैं, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड the basics of these, you will have an easier approach or easier way to answer your spotting the errors or your grammar related exercises in your competitive exam. अभी competitive exam कुछ भी हो, कोई सा भी हो, डिफ़िकल्टी लेवल को अगर छोड़ दे तो बाकी पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर सेम ही होता है. तो these things whatever is being taught, आप किसी भी सेक्शन के लिए लिख रहे हो, it is something that is very important and that you have to keep in mind. Hopefully and this classes will help you. and grammar का एक और सेक्शन अभी भी बाकी है, छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट्स है जो समझना बहुत ही ज़रूरी है. इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप अगले क्लास के लिए भी आएँ और सुने उसको. So don't forget to like, share and subscribe our channel. It is me, Divya, signing off for now. Thank you.